जो अगले स्पीकर हैं सी जय चेहरा, ही इज द चेयरमैन ऑफ द प्रोफेशनल स्किल्स एनरिचमेंट कमेटी। जब सर के बारे में मैं थोड़ी देखभाल मतलब पूछताछ कर रहा था तो मुझे देखने में आया कि इतनी डिग्रीज थी सर की कि मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतनी डिग्रीज एक जीवन काल में व्यक्ति कैसे कर सकता है। काफ़ी आश्चर्य से भरा मेरा वो अनुभव रहा। सर, in addition to his professional academic achievements, he is also a gifted musician and a singer, and he has a very rare blend of creativity, discipline, and intellectual depth. I would now like to call upon C.H. Chara sir to kindly address this August gathering. A very good morning to all of you. The dynamic vice chairman of the Professional Skills Enrichment Committee. Actually, he is the person who runs this committee. चेस की गेम में आपने देखा होगा राजा और वजीर में इम्पोर्टेंट तो वजीर ही होता है, राजा तो बेचारे एक जगह पे चुपचाप खड़ा रहता है. So a very very important pillar of Professional Skills Enrichment Committee from your own state, CA Bhai Chhajek ji. In absentia, of course, because the student program is going on, the Board of Studies Chairman CA Rohit Ruhatia ji, CA Pankaj Shah, your own Central Council member, my dear friend and the Regional Council member CA Anand Jain, and the dynamic chairman of Indore branch CA Rajat Dhanuk and his entire team, CA Milind Wadhwani, and all my dear friends. Once again, a very good morning to all of you. Well, I'll very quickly touch upon some 2-3 aspects of the Professional Skills Committee, and then after I'll come to my topic. I think that is more important because most of it is somehow very interesting, 4 council members together, all talking about the various initiatives. So आप भी सोच रहे हैं इतने सारे initiatives है, इसमें से हम कौन से लें? But we have with us the secretary of the committee, who actually Dr. Sambit Mishra ji. He is the backbone of this committee, and actually हम लोग जो भी discuss करते हैं, execution is a very important aspect. That is what he does. And we have started with 2 new courses, and these are very important certificate courses. The first one we already launched, that is business consultancy certificate courses, because we talk a lot about it, but probably we don't know how to go about with that. So that is the first course we have launched, and the second we will be soon launching that course, that is business analytics certificate course on business analytics. One more course is going on, that is certificate course on professional skills. So these are the 3 important courses according to me, which our members can take up. Along with that, we are having a series of webinars. We have planned out 100 webinars throughout the year on various professional skills, right? We have psychrometric test, we have number of other initiatives, but let me rather come to that topic. अब मैं एकदम सरल भाषा में, rather than a council member, आपके फ्रेंड की तरह बात करना चाहता हूँ. I think वो ज़्यादा सही होगा. I was so very happy the way शुरुआत में, generally मुझे साउथ में बहुत बुलाया जाता है there, even in my region, तो only language they want is English. Somehow that is what it is. तो जब मैं आपके रीजन में आता हूँ और जब मैं आगे के स्पीकर्स को सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है यहाँ पे एकदम फ्रेंडली बात की जाए, सीरियस बातें नहीं करते, काम की बात की जाए. तो पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल सी ये बात बता दूं, एक बहुत अच्छी बात बता. बहुत बरसों पहले, मिलिंद जी, बहुत बरसों पहले मैं यूएस पढ़ाई करने गया. I was in Los Angeles. I did my international business there, and what happened? The dean was an Indian, उदय करमारकर. अब उन्होंने 2 चीज पूछी और ये बहुत आई ओपनिंग होनी थी मेरे लिए, और मुझे लगता है आपके लिए भी हो सकता है. So first question he asked, so you are from which country? I said, sir, India. अब उन्होंने 2 चीज, क्वेश्चन नहीं 2 चीज बताई. नंबर 1, you Indians are very intelligent. हाय रे हाय, कैसा लगे भाई? यूएस में बैठे, बाकी के कंट्री लोग बैठे, और उन्होंने बोल दिया यू इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट. एक्सीलेंट. सेकंड स्टेटमेंट, सो यू कैन नॉट अर्न. कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है.
बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस है, बहुत सारी चीजें। डोमेन एक्सपर्टीज तो इकट्ठा करेंगे ही, जरूरी भी है, लेकिन इज इट इनफ? द आंसर इज नो। नो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं एक सिंपल सा विजन की बात बता रहा हूं। इंदौर के सबसे रईस 100 लोगों का लिस्ट बने और जब तक उसमें कम से कम 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, आप और मैं सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। एग्री करते हैं आप? हम सीए सिर्फ फाइलों में खो जाने के लिए, कंप्यूटर में जाने के लिए और कागज के थप्पों के लिए बने थे, या वो दूसरे थप्पों के लिए भी बने थे? सो दैट्स अ क्वेश्चन जो हमें पूछना होगा। व्हाट इज हैपनिंग? हम लगातार इन द गेम ऑफ क्रिकेट बैटिंग साइड बैटिंग साइड बैटिंग साइड बैटिंग साइड ही सुधार रहे हैं। बॉलिंग और फील्डिंग पे हमारा फोकस नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमारा जो फोकस है, हम इनकम टैक्स में अपने आप को इंप्रूव करते, नया इनकम टैक्स आएगा, लाइन से इंदौर ब्रांच में 50 प्रोग्राम होंगे, हम 50 में से 25 करेंगे और दुनिया भर की सेक्शन याद कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? फीस उतनी ही। ये किसकी गलती है? क्लाइंट की, हमारी। सो डू आई मीन मैं आपको क्या ग्रीडी बनाने को बोल रहा हूं? जी नहीं, जी नहीं। माई पॉइंट इज डिलीवरिंग द वैल्यू टू द अदर पर्सन, राइट? देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। नंबर 1, आप सामने वाले को वैल्यू दे रहे हैं। नंबर 2, उसको ये फील करवा रहे हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। आप उसको फील करवा रहे हैं कि आपने उसको वैल्यू दी है। एंड नंबर 3, उसके सामने आप चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक ये 3 चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। शायद हमने कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अदरवाइज ये होगा कि यहां से स्टेज से मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं दिस इज द टफेस्ट कोर्स। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने और मैंने तो टफेस्ट कोर्स क्लियर किया। बट क्या क्लाइंट हमें टफेस्ट कोर्स के लिए फीस देता है? एकदम सरल भाषा में बात करें तो, बहुत सरल भाषा, आई टॉक टू द यंगस्टर्स लाइक दैट दिस डेज कि भाई सर आई क्लियर दिस वे, आई गॉट अ रैंक दिस। फिर पर्सनली मैं उससे जब बात करता हूँ तो आपकी बात करूँ, स्टेज पे से कई बार थोड़ा अलग तरह से बोलना होता है, और पर्सनली एज अ फ्रेंड जब बात करता हूँ तब सीधा सीधा बात ये करता हूँ कि बॉस एक बात बता तू, मुझे तेरे को 10 करोड़ रुपया फीस देनी है, एक मुझे सिर्फ अकेले मुझे देनी है। मान ले कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, 3rd फेल हूँ, डायमंड किंग, मैं सूरत से हूँ। सो डायमंड टेक्सटाइल्स ही हमारा काम है। एंड सूरत में एक सबसे अच्छी चीज ये कि 3rd फेल जितने डायमंड वाले हैं ये सब अरबपति हैं। तो इसलिए मैं अपने घर पे पूछा था मुझे क्यों 4th स्टैंडर्ड तक भेजा। सो एंड बिलीव मी, उनका अगर आप विजन देखेंगे, उनका मैनेजमेंट देखेंगे, उनसे जो मैंने सीखा है, राइट, वो शायद अच्छी बिल्कुल से भी कई बार नहीं पढ़ने को मिलता। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। हमारा बहुत ज्यादा फोकस टेक्निकल स्किल्स पे, राइट, जो कि जरूरी है। सी, डोमेन एक्सपर्टीज में वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। इफ आई एम इन इनकम टैक्स, आई हैव टू बी बेस्ट इन दैट। इफ आई एम इनटू जीएसटी, आई हैव टू बी बेस्ट इन दैट। But am I working upon developing my profession? Am I working upon that developing the vision? मुझे यहाँ पे एक और चीज अभी याद आ रही है। Maybe some point of time I might have discussed. You listen to me at different place and some few things are repetitive. कुछ चीजें आपको क्या फील आ जाती है तो फिर आप उसको रिपीट करते हो। I remember many years back. Many years means it was something 2009 or 10 or something. At that time, Surat did not have airport. When I got elected in the council, I used to tell that I am the most unique council member. मैं council member से पूछा, पता है तुम लोगों से ज्यादा यूनिक हो। बोले पूछो कैसे? बोले ऐसे, तुम सबके पास एयरपोर्ट है, मैं पहला council member बिना एयरपोर्ट वाला। Of course now it is there. So I had to take flights from Mumbai. So once I was taking a flight from Mumbai, तो मैं रात की ट्रेन है लोकल, उसमें बैठ गया। वैसे गुजरात में ऑन पेपर तो ड्रिंक अलाउड नहीं है, बट ट्रेन एक बार सूरत से निकलती है फिर शायद उसमें अलाउड होगा, पता नहीं क्या है। सो 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग बैठ आए और मुझे कहा, उनमें से एक सीनियर ने, बेटा एक काम करोगे वहां बैठ जाओगे? बोला ठीक है सर, बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया कोने में। अब वो चारों ने बॉटल फोड़ी और उसके बाद एक के बाद एक पैग लगाए, शायद 3 पैग लगाए होंगे। फिर उनको रियलाइज हुआ कि मेरी सीट पे बैठे हैं और मैं साइड पे बैठा हुआ। तो वो सीनियर साहब जो थे उन्होंने मुझे बोला, बेटा आजा, तू भी आजा। तो मैं उनके साथ बैठा। अच्छा बेटा क्या लोगे? तो सर मैं नहीं लेता।
झूठ मत बोलो, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, यंगस्टर नहीं लेते, सर मैं नहीं लेता। अच्छा ठीक है, खा तो ले हमारे साथ। फिर उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, मैं बोला सर सीए हूं। अच्छा सीए पढ़ रहे हो, मतलब सर सीए नहीं सीए हूं। अच्छा पूरे सीए हो, मतलब सर नो, एट द टाइम आई वाज द रीजनल काउंसिल में। बोला सर पूरा ही होता है, आधा सीए तो होता ही। देन उन्होंने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके और मेरे लिए, उन्होंने ये कहा मुझे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत कंप्लेंट्स है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पास दो ऑप्शंस। नंबर वन, बिना सोचे समझे फायरिंग कर देना, सर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी हैव क्लियर्ड द टफेस्ट एग्जाम्स, देयर इज नो अदर कोर्स इन द वर्ल्ड व्हिच इज एज टफ एज दिस दैट आर डू डम। ऑप्शन वन, उस समय कुछ सीख भड़ास निकालता। ऑप्शन टू, समझते तो है, यूजर और सर्विस तो यही है, उसकी नजर से तो देखें, राइट। सो ही टोल्ड मी, बेटा हम जो सूरत में, उन्होंने सूरत का एग्जांपल दिया, आप उसको इंदौर में सेट कर लीजिए। ही से बेटा हम सूरत में जो टेक्सटाइल में बैठे हुए हैं ना, मोस्टली सब राजस्थान से आए हुए हैं, राइट, जो टेक्सटाइल में सूरत में है, और डायमंड में जो है मोस्टली सौराष्ट्र से आए हुए हैं। बोले हम जो टेक्सटाइल में सब बैठे हैं ना, हम में से एक एक जन को अंबानी की आत्मा है। उस जमाने में शायद अदानी जी का नाम उतना बड़ा नहीं था, सो अंबानी की आत्मा है, हम में से एक एक जन वो बन सकता है। लेकिन तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिर्फ हमारा ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो जो हम कभी खोल के नहीं देखते। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम प्रोज एंड कॉन्स जरा इसको अच्छी तरह से खुले दिमाग से सोचे, क्योंकि नहीं तो पोडियम से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही की जाएगी, शायद वो इनफ नहीं है। बोले हम खोल के नहीं देखते, हमें समझ में आता नहीं है। एंड ही वेंट आउट ऑफ से, सरकार कल हटा देगी तो हम करवाएंगे भी नहीं, राइट। So there is a question, do we want to be at the mercy of someone or do we want to actually go for value addition? जिंदगी भर वो तो नहीं चलेगा जो होता आ रहा है। बजाज के स्कूटर चल रहे थे, गायब हो गए हैं, कहीं हमारा भी वही हाल ना हो। One of the topics I used to take was innovate or evaporate. अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आप कैसे भी यूज हो सकते हैं, डायनासोर भी यूज हुआ करते थे। तो हम भी चाहे कितना भी हैवी वेट हो, वी माइट इवेपोरेट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये मत सोच के चलना कि एक बार तूने सीए कर डाला तो लाइफ, किसी कोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड, इस तरह के हम ख्याली पुलाव ना बनाए। सो ही से मुझे तुम सीए से क्या चाहिए, बोले हम राजस्थान के गांव से आए। उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया, आप अपने हिसाब से उस एग्जाम्पल को एडजस्ट कर लीजिए, पूरे इंडिया में इस तरह के लोग हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के लोग जब आए, खाली हाथ आए थे, 500 रुपये से 50,000 तक पहुंचे, 50,000 से 5 लाख तक पहुंचे, 50 लाख तक पहुंचे, 5 करोड़, एक बार 50 करोड़ तक पहुंच जाते, फिर हमारी गाड़ी अटक जाती, हमारी सोच अटक जाती। 50 करोड़, फिर हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते, हम में से कुछ लोग 200-300 करोड़ तक पहुंचते हैं, बस दैट इज इट। हम ये चाहते हैं कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा हाथ पकड़ के हमें 1000 करोड़ तक ले जाओ। तुम जिस दिन ये करके आओगे, यकीन मानो तुम्हें 10 ही क्लाइंट चाहिए, 11वां क्लाइंट नहीं चाहिए, और तुम अभी जो अर्न कर रहे हो इससे 10 टाइम्स कमाओगे। मुझे लगता है इस बात में कुछ दम है। माई क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, दिस इज व्हाट आई आस्क अ यंगस्टर, कि बॉस तू मुझे एक बात बता, मैं एक थर्ड फेल आदमी हूं, एक बिजनेसमैन हूं, तू रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर मैं तुझे 10 करोड़ कब दूंगा? मैं तुझे 10 करोड़ तब दूंगा जब तेरी वजह से मुझे 100 करोड़ का फायदा होगा। रूल ऑफ 10x, यस और नो? अब मेरा फायदा तू कैसे कराएगा? या तो तू मुझे किसी तरह से मेरा सेल्स बढ़ा के दे, या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दे, या मेरा उतना टाइम बचा के दे, उस तरह से स्ट्रेटेजिक टाइम, ऑपरेशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक, जिससे मैं स्ट्रेटेजिकली उस चीज को कहीं और यूज करके पैसा बनाऊं। या तो मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बता के दिखा, कुछ तो कर। अगर तू सिर्फ कागज दिखाएगा तो मैं कितना दूंगा? तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि मैं कोऑपरेटिव के ऊपर कुछ सीखूंगा, फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम करूंगा, 1000 लूंगा, 2000, 3000 लूंगा, कब ग्रो करूंगा, एटलीस्ट मैं अभी तक इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं, राइट। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर मैं 1000, 2000, 5000 में उलझा रहूंगा
जिंदगी भर, तो आगे तो नहीं बढ़ सकता। तो क्या अल्टरनेटिव्स नहीं है? अल्टरनेटिव्स हैं, पर उसके लिए पहले मुझे, सर आपके किसी रोग का निदान तब होगा जब आप पहले एक्सेप्ट करें कि रोग हुआ है। Will you have to first accept, no, I really require growing in leaps and bounds, right? It is not linear, it has to be exponential. First I have to ensure that yes, I do something which creates value for the other person. I don't say what we are doing is not important, but look at the user of the service. User of the service है, value addition real भी होता है और perceived भी होता है, right? रियल और परसीव्ड वैल्यू एडिशन जब तक नहीं हो रहा है, सामने वाला आपको कभी पेमेंट नहीं कर सकता। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हम समझे, बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में हमने कभी सीखा था कि देयर इज अ मार्केट जिसमें कभी कोई नहीं कमाता। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें से एक ऐसा मार्केट है जिसमें आप कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट कमा। नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते पता है? आज मैं अगर लेबर, इकोनॉमिक्स में उसको लेबर बोलते हैं, आज मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस में से भी उतना ही निकालूंगा। अगर मैंने अपनी ऑफिस लगाई है तो उसका रेंट पे लगा हुआ उसमें उतना ही निकालूंगा। दैट इज नॉर्मल। इसका मतलब मैंने एक्चुअली कुछ क्रिएट नहीं किया, सिर्फ मैं अपने आप के साथ गुदगुदी कर रहा हूं। तो ऐसा एक मार्केट है। हैव यू हर्ड अबाउट दैट मार्केट? कौन सा मार्केट है वो? इकोनॉमिक्स में इट इज टर्म्ड एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसमें आप कभी नहीं कमा सकते। अब आप एक चीज समझिए कि मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के रूल्स के ऊपर तो आप और मैं नहीं है। ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने 20 पेपर्स दे दिए तो हम सबसे ऊपर हो गए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि परफेक्ट कंपटीशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? होमोजीनिटी, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। मैं आई थिंक हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिले चल रहा है, ऑफ कोर्स अपॉलॉजीज। अभय भाई भी कल पूरी रात एयरपोर्ट पे ही थे, मैं भी एयरपोर्ट पे था। जो अभी कंडीशंस एयरपोर्ट्स की है, 2 दिन से हम लोग को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ऐसा है कि कंटिजेंटली आगे की फ्लाइट्स दूसरी एडिशनल क्रिएट की हुई थी कि किसी भी तरह से पहुंचना है, और ये भी प्लान आउट किया था वो नहीं है तो ट्रेन में भी किसी तरह से पहुंचना है, लेकिन पहुंचना है। ही वॉज इन कोलकाता, मैं कहीं और था, और किसी तरह से आना था। तो आई थिंक नेक्स्ट जो सेशन होने वाला उसके स्पीकर्स आ चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, बट लॉयर सर की बात कर रहे हैं तो भाई बात एकदम सिंपल है। क्या हर लॉयर शहर में बहुत फेमस है क्या? क्या हर डॉक्टर शहर में एकदम फेमस है क्या? नहीं। कुछ कुछ डॉक्टर्स तो बहुत फेमस है, दे आर अर्निंग हैंडसमली वेल। व्हाट डज इट मीन? वो होमोजिनिटी के बाहर निकल गए, वो होमोजिनिटी के बाहर निकल गए। हमारे फील्ड में भी ऐसा होगा ना, राइट? कि ये लोग ट्रिब्यूनल में बहुत अच्छा काम करते हैं, हाई कोर्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, या सर्च का काम ये बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे आपने होमोजिनिटी को किल किया। आप चेक करिए, जहां होमोजिनिटी है वहां ग्रोथ नहीं है। एंड मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल सीखते सीखते मैंने कई गुरु से सीखा कि अगर नेक्स्ट 50 साल का एक सूत्र सीखना है तो सीखना होमोजिनिटी किल्स, डिफरेंशिएट और डाई, डिफरेंशिएट और डाई, राइट? मैं बहुत ही और एग्जांपल देता हूं इस चीज को समझाने। जब मैं छोटा था और रजनीकांत की फिल्म आती थी तो मुझे लगता है पागल है आदमी, क्या करता है। फिर मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया वो नहीं मैं हूं। द रीजन इज, आप प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वापस कह रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत डाल दिया है। हम बहुत इंटेलिजेंट, हम बहुत इंटेलिजेंट, हम बहुत इंटेलिजेंट, हमने ये किया है। बॉस पहले ये सब निकालना पड़ेगा, जब तक वो खाली नहीं होगा ना नई चीज जाएगी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो रजनीकांत, मैं किसी लेडी से पूछता हूं, मैडम मैं आपसे पूछता हूं, सलमान खान जैसा एकदम बॉडी बिल्डर है क्या? नहीं, पर चल तो रहा है। अभी एक मूवी में 94 करोड़ उसने लिया था। आप और मैं पूरी जिंदगी काम करें तो ये 94 करोड़ सब क्लाइंट से मिला के लेंगे कि नहीं लेंगे, वो एक क्वेश्चन है। तब मैंने सोचा कि यार छोड़ो ये प्रैक्टिस या जो भी है, सीओपी की ऐसी की तैसी रजनीकांत बनते। मैं सब कुछ लाइटर वेन में कह रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर मेनी प्लसेस इन द प्रोफेशन। 100 में से 90 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन वो 10 का जो गैप है, राइट? टाइटैनिक को चलने के लिए 1000 पुर्जे सही चाहिए, डूबने के लिए 2 काफी है। सो मैं उन पे फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? देयर आर मेनी गुड थिंग्स अबाउट दिस प्रोफेशन, बट 1-2 चीज पे हमें काम करना। सो किसी और लेडी से पूछते, मैडम पीछे पूछते, रजनीकांत आपको लगता है वो शाहरुख की तरह एकदम टेढ़ा होकर रोमांस करने के वो बराबर सेट होता है? नो, ये भी नो।
मैडम आपसे पूछते रजनीकांत वो ऋतिक की तरह डांस कर सकता है क्या, वो ये भी ना बोल रहे। किसी और से पूछते क्या अमिताभ की तरह डायलॉग डिलीवर करता है क्या, नहीं। बट लेट अस अंडरस्टैंड वो क्यों सक्सेसफुल, ही डिफरेंशिएटेड हिमसेल्फ। उस जमाने में व्हेन ही केम ही कुड मेक आउट वेरी क्लियरली, अगर मैं डायलॉग डिलीवरी पे फोकस करूंगा मैं अमिताभ के सामने शायद नहीं टिक सकता, मैं मिथुन जैसा डांस नहीं कर सकता, राइट। मुझे अपनी जगह बनानी होगी। लेट मी डू सच टाइप ऑफ स्टंट। मैं वो टारगेट ऑडियंस रखूंगा जो शाम को स्टंट देखने आए, जिसमें स्टोरी लाइन नहीं चाहिए, दिमाग वाली चीज नहीं चाहिए। वो ऐसे लोग होंगे जो दिमाग लगाने के लिए आएंगे ही नहीं, फैक्ट्री छूटने के बाद वो आए हैं, उनको मजा चाहिए। एंड फिर उसने जो स्टंट किए, राइट, जिस तरह के किए उसने, और जिस तरह से चश्मे पहनते अब तो ग्लास बाहर आ जाएंगे। सर एक बार So now this is a beautiful example, please, of differentiation. जब तक एक व्यक्ति डिफरेंट, बॉलीवुड इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। सर सिर्फ डिफरेंशिएशन की वजह से कोई एक ओल्ड कलाकार बिग बी बन के 60 के बाद भी पैसा ले पाता है। इससे पहले एक कलाकार 60 के बाद पैसा ले पाया तो बता दो। ही डिफरेंशिएटेड हिमसेल्फ, राइट। उससे पहले ओल्ड एज वाले सब एकदम सीरियस वाले थे, ये पहला ऐसा था फ्रेंच कट के साथ। डिफरेंशिएटेड, प्लीज अंडरस्टैंड। इससे आगे कितने सारे क्विज शो हो गए, कितने आके क्विज करके गए, आपने मैंने कब देखा। पर ये भाई अचानक आके डिफरेंट तरह से कौन बनेगा करोड़पति रख गया एंड करके गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बिना डिफरेंशिएशन के कभी भी प्रीमियम नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये हुआ, और डिफरेंशिएशन किसकी नजर से होना चाहिए, क्लाइंट की नजर से। या तो आप उसको वैल्यू उस तरह के दे रहे हैं, या तो आप परसेप्शन दे रहे हैं। अच्छा, अगर वो मेरी ऑफिस पे आए, मेरी ऑफिस एकदम रूटीन उसको फील आए, क्या डिफरेंशिएशन हो पाएगा। मेरी बात करने का तरीका एकदम रूटीन लगे, क्या डिफरेंशिएशन हो पाएगा। मतलब हमें इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। आप देख लो ना, जो रेस्टोरेंट, अच्छा कॉफी तो रास्ते पे भी मिलती है और स्टारबक्स में भी मिलती है, लेकिन आप दे रहे हो ना स्टारबक्स का ज्यादा पैसा, कुछ तो डिफरेंशिएशन वो कर पाया ना, राइट। मुंबई में अंधेरी स्टेशन के बाहर जाए तो सब बड़ा पाव वाले एक जैसे ही भाव वाले मिलेंगे, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंशिएशन, राइट। मैकडोनल्ड भी है तो बड़ा पाव का कजीरी है, इंग्लिश बड़ा पाव है, बट देन इट इज डिफरेंशिएट। मैं इनमें से किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू पुट अप द पॉइंट्स। स्किल्स, क्योंकि स्किल्स बोल देने से काम नहीं हो जाता। स्किल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, डोमेन एक्सपर्टीज इज वन थिंग, राइट, उसमें हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट आर वी डेवलपिंग द स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। सर मुझे एकदम सिंपल सी बात बताइए, मैं टी शर्ट पहन के भी आया होता तो भी आपको यही बता रहा होता, आपको तो यही समझ में आता, तो ये मैं क्यों दुख झेल रहा हूं, हमारा तो दिया हुआ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, जब मैं पहली बार आपसे मिलूंगा तो इट इज नॉट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इट इज ऑलवेज फॉर्म ओवर सब्सटेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। ये अकाउंट्स में अच्छा लगता है, और स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मार्केटिंग का तो फॉर्म ओवर सब्सटेंस है। मैं आना पड़ेगा मुझे इसके लिए, राइट। शर्ट से महंगी ये आती है, बट लेनी पड़ेगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्किल्स जब तक हम नहीं डेवलप करेंगे हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू फोकस वेरी क्विकली। आई टच अपॉन अ फ्यू स्किल्स ऑफ इट, बहुत सारी है बट मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं बहुत लाइटर में, जैसे मैंने कहा, मैं अपने एकदम फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही सेशन लेना चाहता हूँ, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, फटाफट फटाफट आप चिल्ला सकते हैं। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सिंसियर एंड सीरियस। हम चार्टर्ड अकाउंट शायद इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो गए हैं। सुबह इनकम टैक्स में एक्सीलेंट और शाम को डांसिंग में एक्सीलेंट हो, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं। वैल्यूएशन में भी अच्छे हो, क्रिकेट में अच्छे हो, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। सीरियस चेहरा जरूरी नहीं है। कहीं हमने पता नहीं गलत तरह से दिमाग में डाला करके पढ़े लिखे लोग सीरियस दिखने चाहिए, ऐसा मुझे फील नहीं आता है। आई ऑलवेज प्रीफर देम विद स्माइल एंड एनर्जी, राइट। तो चिल्ला सकते हो आप वहीं से चिल्लाइए। द फर्स्ट जेंटलमैन इज फैंटास्टिक, नेक्स्ट, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, आई विल कम टू इट। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, आऊंगा उसके ऊपर आऊंगा। चल शाम का बात आ गया सब। शाम देखो जो है, मैं तो गुजरात वाला हूं, हमारे को तो ना बोला हुआ है, कम से कम पीपीटी में तो अलाउड है। सो लेफ्ट में आपको क्या लग रहा है, ग्लास में क्या होगा,
स्कॉच, ठीक है। नेक्स्ट वाला टकीला, यस। इसके नीचे बियर, नेक्स्ट इज मोहितो, ओके। नेक्स्ट फैंटास्टिक, नॉलेज तो है बराबर है इधर में। अब वो मेल्स वाला था तो फीमेल्स के लिए भी कुछ तो होना चाहिए था। आई होप एंड आई विश कि ये मेल्स तक ही सीमित रहे, फीमेल्स कम से कम इसमें भागीदार ना बने। मैं तो मेल्स में भी नहीं चूज पसंद करता, लेकिन चलो जो भी है। नहीं वही है, मतलब सही जगह पे छोरों से कम मत होइए, इसमें मत आइए। राइट, डोंट कम इनटू ऑल द स्टूपिड थिंग्स व्हाट मेल्स आर डूइंग। राइट, कुछ अच्छी चीज करो उसमें आप जरूर आगे आइए। सो फीमेल्स की बात करते हैं तो मैडम ये फर्स्ट वाली चीज है लिपस्टिक, फैंटास्टिक। सेकंड एंड थर्ड वन इज, तो मैं इन सब पे आऊंगा कि ये सब क्या चक्कर है। थोड़ा और आगे चलते हैं। या फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, चलो ना। मैं पहली जो स्किल की बात करने वाला हूं दैट इज मार्केटिंग। इंस्टीट्यूट आपको मार्केटिंग अलाउ नहीं करती, राइट? बहुत बड़ा वहम है, बहुत बड़ा वहम है। सब अलाउड है, सब अलाउड है। हमने माइंड से ब्लॉक करके रखा है अपने आप को। सॉरी टू से दैट, जब मैं कुछ नहीं कर पाता हूं ना तो फिर मैं अपने आप को स्टोरी सुनाता हूं। अब आप मुझे बताइए, सी मार्केटिंग का जो हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर बैन है, रियलिटी में इतना ही दुख है, बाकी का इमेजिनेशन है। ऑल ओवर सफरिंग इज बिकॉज ऑफ आवर ओन इमेजिनेशन, आवर क्रिएशन। सर मार्केटिंग में आप क्या चाहते हैं? इंस्टीट्यूट आपको ये अलाउ करते हैं? आपको ऐसी मार्केटिंग करनी है? डू यू थिंक सो? क्या आप ट्रक के पीछे लगाए, ऑटो के पीछे लगाए, एक ऑडिट पे 2 इनकम टैक्स रिटर्न फ्री? नेचुरली नॉट, राइट? और बाई चांस ये अलाउ हो गया तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। अभी तो खर्चे नहीं हो रहे, सब खर्चे करेंगे, राइट? रेवेन्यू नहीं बढ़ना, खर्चा ही बढ़ने वाला है। सो दिस इज नॉट द वे ऑफ मार्केटिंग। देन व्हाट इज द मार्केटिंग? सर मार्केटिंग इज नॉट सेल्स। मार्केटिंग सेल्स नहीं है, राइट? मार्केटिंग कैसे हो सकता है हमारे लिए? सो नंबर ऑफ वेज। पहला तो है थॉट लीडरशिप। पहला तो है थॉट लीडरशिप। प्लीज अंडरस्टैंड, मे बी ऑन सोशल मीडिया और समथिंग, अगर आप जीएसटी के एक्सपर्ट हैं तो आपने कंटिन्यूस उसके ऊपर ही कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे लिखा। इफ यू आर इनटू वैल्यूएशन तो आपने उसके ऊपर ही कुछ इंटरेस्टिंग मंथली रखा। यू नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि इस फील्ड के लिए आप सही हो। ब्रांडिंग का रूल ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पे, आई रेड इट इन IIM बेंगलोर, वहां पे मैंने मार्केटिंग सीखा था। तो दे टोल्ड मी कि जब एक कस्टमर आपको 19 बार देखता है उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है, और 22वीं बार का तो वो सोचता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। अब मैगी हमने इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है कि मैगी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। कोको कोला हमने इतनी बार दिया है कि एक्सेप्ट कर लिया, जबकि दोनों हमारे लिए हेल्दी नहीं है। आप समझे साइकोलॉजिकली? बोले 90 times when you look at some brand, you start recognizing it now, and after 22nd iteration you will start thinking about purchasing. That is what I read. These are numbers which are maybe somehow they got from some survey that might keep on changing, but now look at it, maybe by way of thought leadership. Suppose आप किसी एक फील्ड में है तो क्या आप ये कर रहे हैं? क्या आप अपने क्लाइंट्स को इस तरह का कुछ भेज रहे हैं? That's a question, right? Or else just see honestly, before joining council I was an entrepreneur. मैंने अपना COP 2001 में सरेंडर कर दिया था। माई डॉटर्स आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैंने क्लियर बोला है कि COP मत लेना, इनकम टैक्स, GST, ऑडिट वाला काम हम नहीं करेंगे। लुक एट द मार्केट साइज एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसमें हम कहाँ अपनी जगह बनाएंगे? हम ये काम नहीं करेंगे, हमारे पास और बहुत एवेन्यूज है, हम उसमें काम करेंगे। सो आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर एंड बिलीव मी, मतलब काउंसिल में आने के बाद तो मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया। एज ऑफ नाउ आई एम ओनली वर्किंग फॉर द इंस्टीट्यूट, नथिंग एल्स, नो कमर्शियल एक्टिविटी। बट आप जस्ट इमेजिन करो कि सपोज मुझे डायमंड के क्लाइंट्स चाहिए, इसी तरह से डायमंड वाले बैठे हो 100 जन, बराबर, और मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो मैं इस तरह के प्रिपरेशन के साथ आया, राइट? वहां अगर मेरा पर्पस होता तो मेरा प्रिपरेशन का तरीका भी तो चेंज होता ना।
साथ में कुछ गिफ्ट बुकलेट्स ये वो कुछ भी होता। द पॉइंट इज दैट बहुत सिस्टमेटिकली मैं सेशन लेता, राइट, उसके बाद डिनर होता, उसमें लोग मेरे साथ डिस्कस करते और मैं कहता कि ठीक है ना, अपने मिलते हैं, क्या इसमें से काम शुरू होता कि नहीं होता। वॉज इट अ बेटर वे ऑफ मार्केटिंग, यस और नो? क्या ये इंस्टीट्यूट आपको ना बोलती है कि आप चैम्बर में मत जाइए एज अ स्पीकर, राइट? या फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ लॉयर्स बैठे, कुछ काम वो ऐसा है कि जो वो नहीं कर रहे वो मुझे रिफर कर दे, या मैं नहीं कर रहा हूँ मैं इनको रिफर कर दूँ। द क्वेश्चन इज क्या ये अलाउड नहीं है और हम नहीं कर रहे? प्लीज अंडरस्टैंड, सब अलाउड है मार्केटिंग में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं अलाउड है। हर चीज का तरीका हमें पता है, हमें हर चीज का पता है कि कैसे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स हम कर सकते हैं। नॉट ओनली इंस्टीट्यूट एथिकल फ्रेमवर्क, रियल सेंस में भी एथिकल, राइट? आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और वो जो मेरे फ्रेंड है, सीनियर है मुझसे, उनको कभी मैंने मतलब ही इज ऑलवेज इन वेरी सिंपल क्लोथ्स, बहुत ही सिंपल, कभी मतलब सूट के साथ नहीं देखा, एकदम वेरी सिंपल। अभी मैं थोड़े दिन पहले उनसे बात की, क्या कर रहे हो? बोले गोल्फ खेल रहा हूं। बोला हाँ, क्योंकि इमेज तो मेरी उनकी ऐसी थी कि सच अ सिंपल मैन। बोले गोल्फ? बोले मेरी कंपनी ने बोला है, ही वाज इन बिग फोर, माय कंपनी टोल्ड मी कि हमारे टाइप के क्लाइंट वही मिलेंगे। है ना मार्केटिंग, है ना मार्केटिंग? इंस्टीट्यूट रोक रही है क्या गोल्फ खेलने से? हम अपने आप को रोक रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अपॉर्चुनिटीज कभी सामने से नहीं आएगी, हमें ही क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन अब एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं, वापिस कह रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज, सब दो चीजें होती है, एक काम लाना और एक काम करना, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, ये दो में ज्यादा अर्न कौन करता है, लाने वाला या करने वाला? हम जितने सेमिनार अटेंड करते हैं वो लाने वाले पे अटेंड करते हैं कि करने वाले पे करते हैं? ये तो है लाने पे। कब किया? सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमें आंसर पता है कि कौन ज्यादा कमाता है, बोले ये, मैं अटेंड कौन से करता हूं, ये, फिर जादू होगा मेरे साथ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट नेचुरली सीए इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से कर रही है। मे बी आई गो टू बी स्कूल, मुझे कोई रोक तो नहीं रहा है ना, मे बी आई गो टू बी स्कूल और वो मेरा माइंडसेट चेंज करे, बराबर? जब मेरे पास 10 स्किल है, एक स्किल डेवलप करनी, आई कैन गो देयर, नो, आई कैन लर्न, कोई रोक नहीं रहा है। पर उसके लिए पहले मेरा विजन तो चाहिए, उसके लिए विजन तो चाहिए। वन ऑफ माई काउंसिल कलीग्स, सी अनिल भंडारी, अभी काउंसिल में नहीं है, फ्रॉम मुंबई, ही इज सेड टू बी अ वेरी विजनरी मैन। कभी उनको सुनने का मौका मिला आप जरूर सुनिए, अ वेरी डायनामिक जेंटलमैन। मैं काउंसिल टेबल में बैठा हूं, उसने मेरा लैपटॉप देखा, ए तू कहां जाके आया? मैं बोला विलनियस। वो तू गया, कब गया था विलनियस? बोले मैं, फिर उसने मुझे बोला मैं लास्ट ईयर गया था। मैं बोला अनिल थोड़ा फर्क है, तू भी गया मैं भी गया, फर्क है, मैं ऑलवेज दे के आता हूं, तू वहां से लेके आता है। सर आप ग्लोबल मैप पे आंख बंद करके वो मैप घुमा के उंगली कर दीजिए, वहां पे उसका क्लाइंट बैठा है, यानी हमारे जैसा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी एज का ही है, मतलब काम है ना। A few years back, सूरत का ही एक बहुत ही होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जैक्ट मेरी एज का, 6 महीना मुझसे बड़ा, राइट? He took up a very big training program in UK, and उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में से उसने जो फीस ली है, उसने जो फीस चार्ज की है, वो मैं अगर सूरत के ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरे साल की टोटल ग्रॉस ऐड करूं, उससे ऊपर की थी। And he very smartly took at that time and he called me. कहाँ से? गुजराती में फोन करके बोला, ऑफ कोर्स गुजराती। मैं बोला ऑफिस पे, आ जाऊँ अभी, मैं इधर से गुजर रहा हूँ, आ जा। अच्छा ये देख 16 टॉपिक देख, ये कैसे है? मैं बोला अच्छे, इसमें से तेरे को कितने सेट हो जाते हैं? मैं बोला इसमें से 12 तो मैं आराम से बिना प्रिपरेशन के ले सकता हूँ। बोले ये नहीं ले सकता, टैक्सेशन इन मे बी आम्स्टरडैम और टैक्सेशन इन हांगकॉन्ग, ये मेरे नहीं पता है, बाकी ये तो हो सकते हैं। बोले ठीक है, तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल रहा है, अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग है, 16 टॉपिक है, 12 तू लेगा, 4 मैं लूंगा। एंड ही पेड मी सम अमाउंट, जो 3 दिन के हिसाब से मुझे अच्छा लगा, बट आप समझ सकते हो उसने मुझे जो पे किया होगा 50% तो नहीं होगा, 25% भी नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, उस भाई ने तो मजा ही लिया ना। तो ये पॉसिबल था,
पर हम नहीं देख रहे उसको, हम नहीं देख रहे उसको। अपॉर्चुनिटीज हैं सर, जब तक मैं वो देखना नहीं स्टार्ट कर, हम में से देखो ऑब्वियसली लाइटर वेन में समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम वही देख पाते हैं जो हमारा फोकस है। आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। यू नो, अगर एक गाना चल रहा है पुराने जमाने का, कोई गिटारिस्ट है, तो उसका ध्यान क्या होगा पता है? अंतरे में ये एफ शार्प पे चल रहा है, ये मुखड़े पर ये सी है, इसमें इसने ये, अच्छा वो पियानो वाला है ना, वो ये देख रहा है, ये खत्म हो गया ना, इसके बाद इसने यहाँ पे ये पीस दिया हुआ है, यहाँ पे ये। वो ड्रम्स वाला है ना, उसका ध्यान यही चल रहा है, 16 बीट 1 है, यहाँ पे इसने 3 पे स्नेयर लगाया, इसने ये उसका ये। और सिंगर है, उसका ध्यान सिर्फ वर्ड पे ही जा रहा है। हाँ या ना? थोड़ा लाइटर है ना, सीरियस नहीं बनाना है। इट इज सेड दैट व्हेन टू कपल्स मीट, wives look at each other's jewelry, husbands so, of course my point is, अब आप समझो, मैंने अगर अपने आप को सिर्फ इसी चीज के डेवलप किया हो कि मैं सिर्फ प्रोसीजरल काम करूंगा, तो मुझे हमेशा वही दिखेगा। हाँ या ना? मतलब काम तो है ही, पर मेरी नजर मैंने वो नहीं डेवलप किया। राइट, काम है, ये रातों रात डेवलप भी नहीं होगी, पर पहले मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं सच में इस चीज को फील कर पा रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारे तगलगी तुक्के आते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट, बहुत सारे आते हैं, कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, राइट। जहां पे मैं सच में फील करता हूं वो मेरे हो जाते, जो उतने फील नहीं करता हूं वो नहीं होते। तो आप चेक करिए, कई बार हमने सिर्फ तरंगी तुक्के लगाए होते, हम सिंसियर नहीं होते किसी चीज के ऊपर, राइट। सो कंटेंट मार्केटिंग, क्वालिटी सर्विसेज ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेज ऑफ मार्केटिंग, बट उसके साथ साथ आपको क्लाइंट के थ्रू उस चीज को कम्युनिकेट करना आना चाहिए ना। आपके क्लाइंट से तो आपके इनिशियल कम्युनिकेटर्स हो सकते हैं। सो आई विल स्किप अ फ्यू थिंग्स नाउ हमारी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारी एक प्रॉब्लम है, वी गो टू FAFD सर्टिफिकेशन कोर्स नॉट टू लर्न दैट, अंडर एन एक्सपेक्टेशन के इसके बाद इंस्टीट्यूट सामने से काम देगी। हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि ये मैंने किया, अभी तक तो इंस्टीट्यूट को दिया ही नहीं, राइट। ICI अलॉट करेगी तो मुझे आएगा काम, कॉन्फ्रेंस अटेंड करूं काम तो आएगा तो करूं। हमारा थॉट प्रोसेस है, गवर्नमेंट कंपलसरी करे तो काम आना चाहिए। यस, नाउ द क्वेश्चन इज, माना कि हम शेर हैं, पर ये वाले शेर नहीं हो गए, ये वाले शेर नहीं हो गए कि गवर्नमेंट देगी काम तो आएगा, गवर्नमेंट देगी। सर इमेजिन करो, मैडम ने कल को ऑडिट के ऊपर कुछ कैंची घुमा दी, हाँ वो सब है, सबको सब पता है, सबको सब पता है। देखो ऑनेस्टली, यू नो वेरी वेल, फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स बैंक ऑडिट बंद करने की बात चल रही है, और हम किसी तरह से वो उधर ले जाते हैं, हम उधर ले आते हैं, कि जितना जो हो पाता है उतना कर रहे हैं, राइट। प्रेसिडेंट इज वर्किंग, ईच एंड एवरी प्रेसिडेंट नोज दैट माय मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, right, and he is doing that, but the fact is that at any point of time, because it is made, sir जिस दिन मैंडेटरी ना हो और क्लाइंट हमारे पास दौड़ा आए, उस दिन वो हमारी स्किल से आ रहा है, हाँ या ना? वो वहां पे जाना पड़ेगा ना। एक कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है इसलिए बच्चा जा रहा है, वर्सेस नहीं यार इस फैकल्टी को नहीं सुना तो कुछ मिस हो जाएगा, उसमें जा रहा है, दोनों में फर्क है ना। दैट्स द क्वेश्चन। सो क्यों ऐसे बने? ये वाले बनते ढूंढ के लाएंगे, बिल्कुल ढूंढ के लाएंगे। जस्ट बिकॉज मैंने दुनिया का सबसे टफ कोर्स किया, पूरी दुनिया तो मेरे पास नहीं आएगी। जस्ट बिकॉज आई एम द लायन, दैट डज नॉट मीन कि सब के सब जानवर मेरे पास सामने से आएंगे, हाई डियर प्लीज कम, ये तो नहीं होगा। हंटिंग तो करना ही पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा, हम शायद इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। सो एनीवे, दिस इज वन ऑफ द स्किल्स। सेकंड इज टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जब बात आती है तो हम बहुत अलग तरह से उसको देखते हैं। A few 2 years back, precisely 2 years back, I was in Doha. I was invited as a speaker. Last month also I was in Doha. Before me there were 5 speakers, and all the 5 were some so-called technology people and this and that, and they say, जिस तरह से उन्होंने बोला, people felt हम तो गए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो खत्म हो गए, बोले AI हमारा सब काम ले जाएगा। And I was the 6th speaker. तो मैंने अपने हिसाब से बोला कि बॉस, मैं इंडिया से हूँ, एक स्टेट है गुजरात, उसकी एक छोटी सी सिटी सूरत से हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत अनपढ़ डायमंड के बिजनेसमैन है जो अरबपति है,
टेक्सटाइल में भी सब अरबपति लोग हैं, और ये AI है ना, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब क्यों हम ये समझे, AI में हम कई बार एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं, AI और वॉट एवर टेक्नोलॉजी। ना तो आपको ये बनना है AI जैसे कि ये देख के बोले यार ये क्या हो रहा है, टोटली अनअवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट शुड आल्सो बी नॉट देयर। और ना ही आपको वो बनना है सुंदर, सुंदर बन सकते हैं, पिछाई बनने की जरूरत नहीं है। सी, हमें दोनों में से कोई चीज नहीं बनना है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी कैसे होनी चाहिए वो हम समझे। हमारे लिए ये है, सर हमें मैकेनिक नहीं बनना है, हमें कार चलाना सीखना है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, और मेरे कौन से क्लाइंट के केस में या मेरे खुद के केस में मैं कौन सी टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करूं, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला हो, एंड मैं ये किसको लगा दूं, या तो मैं परचेस कर रहा हूं या तो मैं किसी से करवा रहा हूं। ये हमारा काम उसकी नीटी-ग्रिटी में जाना। आउट ऑफ इंटरेस्ट इफ वी डू दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सर फॉर स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट आई डोंट हैव टू बिकम अ कुक। हमारा प्रॉब्लम ये हम कुक ही बनना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। या तो हम टेक्नोलॉजी हम में से आधे एकदम इग्नोर कर देते हैं, या फिर आधे उसके एकदम जड़ में अब मैं उसका कोडिंग करूंगा। भाई इतनी हद तक जाने की भी जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। यू शुड ओनली नो कि व्हाट आर द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड हाउ you can take the help of some expert or you can hire someone depending upon the circumstances. हमें तो कार चलाना आना चाहिए। भाई मैं बरसों से कार चला रहा हूँ, कार के अंदर क्या हो रहा है इसमें से मुझे कुछ नहीं पता, जरूरत क्या है? This is what technology is for us. Because otherwise, अभी AI के नाम पे तो सब कॉन्फ्रेंस हिट जा रही है, एंड लोगों को पता नहीं क्या बन जाना है। So once again, I'll skip and last वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ, टाइम लिमिटेड है। नेटवर्किंग। सर नेटवर्किंग की बात करें, नेटवर्किंग की बात बहुत से लोग करते हैं। सर एक प्रॉब्लम हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, हम बहुत शाई हैं, वी आर अ शाई प्रोफेशन। अरे अंदर की बात है, अंदर अंदर तो एक्सेप्ट कर लो, बाहर कहाँ जा रहे हैं? सर देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑफिस में बैठा रहूं, शाई होता रहूं, हम सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से ही बात करते हैं, हाँ या ना? अच्छा यहाँ पे भी जिनके साथ आओगे उन्हीं के साथ जाओगे, यस। अच्छा वो बच्चा फाउंडेशन में 4 लोगों के साथ गया, इंटर में भी उसी के साथ, फाइनल में भी आगे भी उसी के साथ। ऐसा नहीं दीज आर द बेस्टीज। एक्चुअली क्या 5वें से बात करने में अपने को शाइनेस फील होती है, इसलिए हमने वो बेस्टी बना रखे। सर प्रॉब्लम ये है, जब तक आप बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तब तक आपको ह्यूमन नेचर समझ में नहीं आता। एंड जो लीडर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी 2 स्किल होती है, विजन एंड इंटरपर्सनल स्किल। अब आप मुझे बताइए हमारी कौन सी स्टडी में ये 2 आ सकती है? तो आप कल से ये मत बोले ICAI नहीं सिखा रही, ICAI सब कुछ नहीं करा सकती, राइट? उसने जो अपना रोल प्ले करना था वो प्ले कर दिया, उसने जो रोल प्ले करना था किया और कर रहा है। आपको अगर पता है कि 10 चीज वो दे रही है, 2 और लेनी है, तो 2 के लिए हम काम करेंगे, राइट? सो मिलिंद, आई थिंक द नेक्स्ट सेशन के लिए आपके चेहरे पे भी दिख रहा है, 2 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा, है नहीं? टाइम की वैल्यूएशन करते हुए, बिकॉज द नेक्स्ट स्पीकर्स आर देयर। सो नेटवर्किंग में सर पहली चीज बताऊं, मैं एकदम स्पिरिचुअल तरह से बता रहा हूं, जो मैं ऑनेस्टली मानता हूं, दिस जेंटलमैन वाज आस्क्ड वन क्वेश्चन, और एक ये आंसर आप देखो एक इंडियन ही दे सकता है। ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ डू यू ट्रीट अदर्स, हाउ डू यू ट्रीट अदर्स? और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया, देयर आर नो अदर्स, देयर आर नो अदर्स। मैं जब इंदौर आता हूं ना, तो मैं इंदौर का हूं वैसे ही रहता हूं, वैसा मेरा बिलीफ भी है, इसलिए मैं लोगों के साथ उतना ही, आई एम श्योर शायद इंदौर के बाहर से, आपके रीजन से बाहर से शायद मैं अकेला ऐसा काउंसिल मेंबर हूं जो इंदौर में 200 CA को नाम से बुला सकता हूं, राइट? सो द पॉइंट इज, क्या इससे मुझे कुछ बेनिफिट लेने की आशा है? नो। क्या मिल सकता है? हाँ मिल भी सकता है, बट दैट इज नॉट द पर्पस। पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट meeting some people to squeeze something. It is our nature to interact with many different people, so that I develop, there is something within me which will come out, right? And जब ये होगा तो नेचुरली काम आएगा भी, और मुझे काम लाने की स्किल भी आएगी। सर मॉर्निंग वॉक पे भी 2 क्लाइंट उठा के ले आऊंगा, स्विमिंग पूल में होंगे तो स्विमिंग पूल में से भी क्लाइंट आएंगे, क्योंकि वो स्किल आ गई है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो नेटवर्किंग, हमने ऐसे ही लाइटर वेन में ये है कि किसी ने पूछा कि यार बर्ड्स क्यों उड़ते, हम क्यों नहीं उड़ते? तो आंसर बहुत सिंपल बॉस,
meet the world with open arms and open mind and you shall be the top of it. Close mind से काम नहीं हो सकता, right? सबसे मिलना, सबसे बात करना और उनके नजर से समझना. हमारी एक प्रॉब्लम है, मिलते हैं लेकिन चलाते हमारी है. That does not work, right? So these are some very important skills, right? Not because I am from Gujarat, not because of some political ideology, but the fact is that this gentleman was straight away elevated as the chief minister. The reason was that इनको जहां भेजा जाता था चले जाते थे, और थैला उठाया, जब इस गांव में जाके काम करके आए चले जाते थे. कई साल ये काम किया. Only because of this skill, acceptance skill, उनको straight away अचानक एक कंटिजेंसी सीएम बना दिया था. He never contested in elections. Without an election सीएम थे. तो ये स्किल, नेटवर्किंग स्किल्स की जो हम बात कर रहे हैं, राइट? वेरी वेरी फॉर्चुनेटली 2 years बैक देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और G20 भी चल रही थी. 2 की जगह पे 4 years हो सकता है शायद. देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद 4000 पार्टिसिपेंट्स. द टॉपिक वाज वसुधैव कुटुंबकम. एट दैट टाइम आई वाज नॉट अ काउंसिल मेंबर. So generally if you are not a council member, you know, in international events you are not getting an opportunity at that time. But I was called. क्या ये टॉपिक है, पीएमओ में से आया, 1.5 घंटा इसके ऊपर बोलना है. So you have to come. क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम को 1.5 घंटा कैसे बोलोगे आप इस टॉपिक, राइट? सो बात ये है कि पहले तो अपने उस नेचर में लाना पड़ेगा, सबके साथ उस तरह से इंटरेक्ट करना. When you become that magnet, you will attract the things. Anyway, I'll not go too much into it. There are so many things, but time is there to think about it. सोलो सिंगिंग भी सही है. आप अगर सोलो प्रैक्टिशनर गलत कुछ नहीं कर रहे, पर अब सोचने की जरूरत है कि मैं सोलो सिंगर बनूं या मैं ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनूं. ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स. डू आई रियली मेक अ बिग फर्म नाउ? इज इट द टाइम? और आई एम ओके विद सोलो. प्लसेस माइनसेस दोनों के, गलत कुछ नहीं है, राइट? गलत कुछ नहीं है. इज इट द टाइम टू मेक अ प्रॉपर टीम? टीम के ऊपर काम किया जाएगा. और खास करके सीनियर्स, अगर आप टीम नहीं बना रहे सर, अगर आपकी प्रैक्टिस के 10 साल के बाद आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ऊपर नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप अपने आप को फाइनेंस कंसल्टेंट कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू कंसल्ट अ क्लाइंट एंड टेल आई एम अ कंसल्टेंट टू यू इफ यू योरसेल्फ डू नॉट हैव पैसिव इनकम मोर देन एक्टिव इनकम? टारगेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बॉस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मैं यहाँ इंदौर में खड़ा हूँ, मेरा वहां पे वो पैसिव इनकम का मीटर चालू होगा तभी तो यहाँ खड़ा रहने मेरे को चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? घर भी तो चलाना है. सो आर वी प्लानिंग फॉर दैट? ये सिर्फ क्वेश्चन है, इनमें से एक एक क्वेश्चन पे एक सेशन हो सकता है एंड वी कैन क्रिएट. ये पॉसिबल है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थॉट्स. अब फटाफट इस पे आ जाता हूँ. हमारी प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये आपने बताया बुमराह. बुमराह की खासियत क्या है? बॉलर, फास्टर, ठीक है. ये कोहली हिटर, ठीक है. धोनी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बुमराह विराट कोहली जैसा काम कर सकता है या कोशिश करनी चाहिए? नहीं. कोहली धोनी जैसा कर सकता है? अच्छा आपको मैं एक चीज बता दूं, ये लोग हमारे सामने है क्या? ये कुछ नहीं हमारे सामने, ये कुछ नहीं है. हमको देखो, हम अकेले धोनी भी बनेंगे, बुमराह भी बनेंगे, मैं इनकम टैक्स भी करूंगा, मैं जीएसटी भी करूंगा, मैं क्लाइंट भी लाऊंगा, मैं अपनी ऑफिस भी हैंडल करूंगा. ये एक ही चीज कर सकते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी मैं ग्रो करना चाहता हूं. भाई साहब ये लोग भी जानते हैं एक ही चीज कर सकते हैं, पर हमें देखो, काम कौन लाएगा? मैं. करेगा कौन? मैं. फीस कौन कलेक्ट करेगा? मैं. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? मैं. इनकम टैक्स मैं. फिर इसके बाद अभी में आके बोले कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव का सर्टिफिकेट कौन करेगा? मैं. अबे यही नहीं हो रहा है हैंडल तेरे से, ये कहां ऐड करने बैठा, राइट? उसके बाद बोले मीडिएशन करूंगा, सब कुछ कौन करेगा? मैं. अहम ब्रह्मास्मि. देखो मैं इस तरह से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीज सबने कही है, शायद ऐसे उटपटांग तरीके से हमें फील आता है, right? That is what I have learned in management, that you know you have to give some very ridiculous examples to make up your point. That's why I am putting it this way. So the thing is, शाहरुख की खासियत वो उस तरह का, शाहरुख जैसा रोमांटिक गोविंदा करे ठीक लग रहा है क्या? नहीं. गोविंदा जैसी स्टाइल सलमान खान का उसके जैसी कॉमेडी करे तो मुश्किल है ना. लेकिन ये कौन है हमारे सामने? हमें देखो, हम सब कुछ कर लेते हैं. So please understand, it is not possible. शायद 1 से 2 तो हो, 2 से 3 तो हो पार्टनरशिप में, राइट? कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस है, एंड ये लिमिटेशंस हमारे साइकोलॉजिकल है. वैसे संबित जी जो हमारे कमेटी के सेक्रेटरी है, इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ICI ऑफिसर एंड
बहुत ही सिंसियर है एंड बिलीव में हमारी कमेटी में हम तो सिर्फ हाँ ही करते हैं, सब काम ये करते हैं. सो इन्होंने ही आइडिया दिया था साइकोमेट्रिक टेस्ट का. क्या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो माइंडसेट है, हम इंट्रोवर्ट, हम एक्सट्रोवर्ट, हम टीम प्लेयर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, हमारे क्या लिमिटेशन है, उसकी टेस्ट सीरीज भी चलती है, राइट. आप कभी प्रोफेशनल स्किल्स एनरिचमेंट कमेटी की साइट पे जाइए, आपको सब मिलेगा. संबित जी, आप एक बार लास्ट क्लास में आज 2 मिनट आप बता देना क्या क्या है, राइट. ही इज डूइंग इट फैंटास्टिक. हम लोग सिर्फ हाँ बोलते हैं. यस, ही इज द पर्सन हु एक्चुअली डज एवरीथिंग. सो आप समझो, नहीं कर सकते हम. कुछ साल पहले एक मूवी आई थी ऐसे, अमर अकबर एंथनी, बराबर. सो हर एक जन का अपना अलग अलग रोल था, लेकिन हम नहीं समझ सकते, बराबर. एंड इसी में उन्होंने कहा था नेटवर्किंग के बारे में, एक से भले दो, दो से भले तीन. वो गाने में एक्चुअली नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, हम समझ नहीं पाए. देयर वाज अनदर मूवी महान, जिसमें अमिताभ था ट्रिपल रोल में, पर महान वो नहीं, महान हम है. मैं कोई नई चीज नहीं करना चाहता ऑफिस में, रोज सुबह जाऊंगा, हर चीज मैं करूंगा, लेकिन मेरी प्रैक्टिस तो ग्रो होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट कोर्स करके किसी पे उपकार किया. प्लीज अंडरस्टैंड, इट विल नेवर हैपन. बहुत सिंसियरली उसके ऊपर सोचना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी, एग्जीक्यूशन करना होगा. बहुत सिंसियरली करेंगे तो ही हो पाएगा. आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं. फाइनली इस चीज पे अटक जाते हैं. लास्ट वन, द लास्ट वन, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल. I don't know the truth of the statement, but मुझे statement पसंद है. A shark in a fish tank will grow 8 inches, but in the ocean it will grow to 8 feet. The shark will never outgrow its environment, and the same is true about you. आपने अपने आजू बाजू का क्या environment create किया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक ग्रो कर सकते हो. जब environment ही नहीं होगा, 8 फीट तक जाओगे कैसे? 8 इंच तक ही रहोगे. environment के ऊपर कुछ questions है, क्या हम चेंज कर सकते हैं? This is just a thought, right? And I must thank the Indore branch for providing this wonderful opportunity to me. And more than that, you all, बहुत मुश्किल है सुनना, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, right? But you all were a very wonderful audience. Thank you very much for being patient.